चलो 138 वेटिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। Hello and welcome to today's session of Travel and Webinars. Thank you everyone for joining in. We can already see like hundreds of participants joining in and इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट देखे वियतनाम एक नई डेस्टिनेशन के बारे में कि लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, राइट। सो आज का सेशन आपने जैसे आपको पता ही होगा कि आज का सेशन इज अबाउट वियतनाम डेस्टिनेशन लर्निंग। हम वियतनाम की साइट सीइंग, होटल, पैकेजेस, फ्लाइट्स, इवन फ्लाइट्स का हम आपको वहाँ पे पहुंचते कैसे, आइटनरीज हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको आज A to Z सब कुछ बताएंगे, right? And for that, first of all, my name is Devansh Kalra. I'll be your host for the session, and I'm being joined by Mr. Gaurav Verma, who is the destination expert of Vietnam. And trust me when I say this, इस बंदे से better आपको कोई नहीं मिलेगा वियतनाम के बारे में बताने के लिए, right? So, Gaurav, can you hear me? Yes, Devansh, I can. So, hi everybody. I'm Gaurav from Trackline Vietnam DMC. So basically मैं आज यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ so that I can make you learn more about Vietnam and enable you to sell more and more Vietnam to your clients. और Vietnam as a destination, you also know that day by day the Indian tourists are increasing in Vietnam, and Vietnamese also finding Indian tourists very great for them because we Indians and the Vietnamese culture is very similar, right? So we'll discuss many things like this about the India and Vietnam, and why to travel Vietnam and how to travel Vietnam and why to book Vietnam with Travelplan first of all. So we'll discuss this all. Thank you. So thank you so much, Gaurav, for joining in. I hope हमारे ट्रैवल एजेंसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है like basically इस सेशन को लेकर वियतनाम के बारे में जानने, क्योंकि like हमने वहाँ पे गौरव पर्सनली वहाँ पे आई थिंक 1.5 या 2 महीने रहकर आए हैं। एंड वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, साइट सीइंग वेंडर्स हैं, जितने भी आपके ट्रांसफर्स हैं, उन सब की बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग हो रखी है हमारे पास, राइट। एंड तो आज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। And Gaurav, please take it away. We know that you made a presentation for the same, and my travel agents was that excited, right? So yes, without any further ado, let's get started. So hi everybody, कैसे हैं आप लोग? So I think सभी खुश होंगे, सभी अच्छे होंगे, and how's business going? I think business सभी का अच्छा चल रहा होगा। और अभी तो you guys also know कि TCS का जो increment होना था 5% से 20% वो भी defer हो गया है। So it is a good news for everybody in the industry, right? So let's start with the Vietnam. I'll be sharing a presentation और उसमें से धीरे धीरे I'll tell you more about Vietnam, and if you have any questions so you can just write it down and we'll be there for answering each and every question and to matlab clear all your doubts, right? Hi everybody. So I hope you all can see the screen, right? Devansh, you can see it, right? Okay. So Vietnam is a top selling destination in 2023, and it is very true because if we talk about the past few years, so अब से पहले अगर highest Vietnam में Indian tourist का travel था तो that was in 2019. Around 1,70,000 people went to Vietnam in 2019, right? उसके बाद भी everybody know कि COVID आ गया था और उसके बाद वापस से अब travel शुरू हुआ था बीच में। So in 2022, around 1,10,000 people from India visited Vietnam for the tourism purpose, and in 2023 you will be amazed to hear the fact that more than 2 lakh travelers have already visited Vietnam. तो 2 लाख से ज्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं। अभी तक का हाईएस्ट वाज इन 2019 1,70,000, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि 5 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट विल ट्रेवल टू वियतनाम by the end of this 2023, right? So why Vietnam? So if we talk about the country, then it is in Southeast Asia, everybody know it,
and it is a very beautiful country. I have been there and many of you also have been there, and आपके guests भी गए होंगे, कुछ लोगों ने हमसे already book भी कराया होगा, because already we are doing very good in Vietnam, and we are doing closing around more than 200 packages for Vietnam as a DMC in a month, right? In past few months we are continuously doing 170 180 plus packages. So if we talk about Vietnam, so it is in the Southeast Asia of the in the world map. It has very good natural beauty and abundance of natural attractions. So it provides unmatched experience for everybody. Okay, for everybody. If we talk about the current peak season, so peak season abhi already chal raha hai, right? And in the coming future there will be a monsoon period, but in monsoon also सारी साइट सीइंग्स होती हैं. काफी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि भाई मानसून में क्या होगा क्या नहीं होगा. तो अनडाउटेडली देयर विल बी अ लिटिल इफेक्ट ड्यू टू मानसून, बट एज सच कोई साइट सीइंग्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा. मेजरली क्रूज एंड ओशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट पड़ेगा. Okay, guys, I will have to take 2 minutes. Okay, I'm so sorry for this inconvenience. So just give me 2 minutes and I'll be back. Yes, Sam. So hi everybody, and I'm really sorry for the inconvenience, right? So we can start now. So I was talking about the peak season and monsoon period. So कुछ खास impact नहीं होगा वियतनाम एज अ डेस्टिनेशन पे, एंड पीपल यूज टू विजिट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग रेगुलर जाते हैं, बट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फॉर सम पर्टिकुलर डेज देयर कुड बी अ हैवी रेन. बट कोई भी साइट सीइंग अगर मिस होती है, कुछ भी होता है, तो वी ऑलवेज प्रोवाइड द अल्टरनेटिव, एंड वी आर डूइंग दिस सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? सो व्हाट आर द मेजर सिटीज? जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए शुरू से स्टार्ट करते हैं. तो वियतनाम हैज 3 major parts, right? North of Vietnam, center of Vietnam and south of Vietnam. If we talk about the north of Vietnam, तो उसमें हनोई है, और हनोई के आसपास 2 मेजर सिटीज हैं, एक हलोंग प्रोविंस एंड एक निन्बिन प्रोविंस. जनरली हलोंग में व्हाट हैपेंस इज, हलोंग में क्रूजिंग होती है. देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रूज, डे क्रूज एंड ओवरनाइट क्रूज. और निन्बिन में डे टूर होता है. निन्बिन इज अ हिली एरिया एंड हलोंग इज अ बीच साइड एरिया, ओशन एरिया, राइट? If you talk about center of Vietnam, so as you can see in the slide also, so Da Nang है यहाँ पर, Hue है and Hoi An है. Da Nang and Hoi An are around 45-50 minutes away from each other, and if you talk about Hue, so it is around 2.5 hours from Da Nang. Saigon is there in the south of Vietnam. Sorry, Saigon is there in the south of Vietnam. Saigon का दूसरा नाम is Ho Chi Minh City, जो आप सभी ने obviously सुना होगा, right? So Ho Chi Minh City is in the southern part of Vietnam, and Saigon is there another name for Ho Chi Minh City. Southern part में अगर आप और देखोगे तो नीचे आपको एक और island मिलेगा, that is Phu Quoc Island, which is also a major attraction for the tourists. Why Vietnam? I already told you. Breathtaking landscape, nowhere to be found travel experience. It is very affordable, as you guys know, everybody know it. It has very wonderful beaches in Da Nang and in Phu Quoc. Coffee is very famous for Vietnam. Even tea is also famous for Vietnam is also famous for tea. Friendly and hospitable people. Yeah, these Vietnamese people, they are very kind and they are very good. They always pay gratitude and always try to support you irrespective of the language barrier. There is so much language barrier in Vietnam. They only speak Vietnamese, and few of the 5-star and 4-star hotel staff speak English, right?
So flights, there are direct flights to Vietnam, and if we talk about the flight expense, so majorly 25 to 30,000 के अराउंड में राउंड ट्रिप की फ्लाइट टिकट्स आपको इजीली मिल जाएंगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स. एंड इफ आप लेओवर लेंगे तो इन दैट केस इट कुड बी चीपर आल्सो. So it is a year-round destination. Why to book with Travplan? So we have 85 plus directly contracted hotels. We have directly contracted cruises also with us. We have destination experts. I am here. You must be knowing many other team members of Travplan Vietnam team, right? You must be knowing Viva. You must be knowing Arjun. So everybody is there to help and answer your questions. So मतलब हम हेल्प कैसे करते हैं? वी हेल्प यू टू नो इट बेटर एंड सेल इट बेटर, सो दैट आप अपने क्लाइंट्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकें, राइट? फूड इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल पॉइंट फॉर वियतनाम. सो बहुत लोगों के मतलब मन में ये मिसकंसेप्शन है कि फूड, इंडियन फूड ढूंढना वियतनाम में बहुत मुश्किल होता है, बट लेट मी एश्योर यू, बी इट इंडियन फूड, be it जैन फूड, be it non-veg, और be it मतलब हलाल और झटका, तो हर तरह का वैरायटी जो इंडियंस की टेस्ट बड्स को पसंद है और इंडियंस जो प्रेफर करते हैं, you can get everything in Vietnam. If you are a Gujarati and you want Gujarati food, so we have restaurant who serve Gujarati thalis to our Gujarati guests. So if you are a Jain and you need Jain food, so we have arrangements in Vietnam where the restaurants can provide you Jain foods at the request, right? Almost zero escalation on trip. So अगर मैं देखो धंधे की आपसे 1-to-1 बात करूं, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि zero escalation, then it will be a lie. बट ऑलमोस्ट जीरो एस्केलेशन इज समथिंग कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उसको बड़ी बनने से पहले उसको एलिमिनेट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू गाइस एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द डीएमसी, राइट? वीजा, इफ यू टॉक अबाउट वीजा, देन वीजा इज वेरी अफोर्डेबल एंड इज वेरी इजीली अवेलेबल. अगर आप वियतनाम की जो वीजा साइट है गवर्नमेंट की, उस पर भी आप जाओगे तो यू विल हैव टू पे सम सर्विस चार्ज एंड 25 USD फॉर द स्टैम्प फी, राइट? And what we charge is, we charge around 30 USD from you guys. So visa is, there are two kind of visas, e-visa and visa on arrival. So visa on arrival का भी प्रोसेस वियतनाम एम्बेसी की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, तो by the time I think within next 1 month there will be an option of visa on arrival also for Indians. And if you talk about e-visa, then it will cost you around 2500 INR, which is around 30 USD, right? So major airports, there are 4 major airports, one in north, one in center, and one in south, and one is in Phu Quoc Island because it is an island, right? So in north it is a HAN airport, Noi Vai International in Hanoi. In center there is DAD airport, Da Nang International Airport in Da Nang. In south it is SGN, Tan Son Nhat International Airport, and which is in Ho Chi Minh City, yeah, right, which is Ho Chi Minh City's international airport. So in Phu Quoc Island it is Phu Quoc International Airport, PQC, right? So we will share this flight this slide with you also, so that आपके पास और better reference हो regarding the destination, right? Major cities, as I told you, in Hanoi, in north there is Hanoi, Halong Bay, and Ninh Binh, and Sapa, right? Sapa is around 7 hours away from Hanoi. Ninh Binh is around 2 hours. Halong Bay is around 3 hours away, and Hanoi is around 40 minutes away from HAN airport, Hanoi airport, right? सेंटर ऑफ वियतनाम में दनांग आता है, हुयान आता है, एंड हुए आता है. दनांग जो है वो दनांग एयरपोर्ट से अराउंड 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, विच इज नॉट सो फार. दनांग एयरपोर्ट से जब आप दनांग सिटी की तरफ जाएंगे तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ड्रैगन ब्रिज है वहां पर, तो ड्रैगन ब्रिज के थ्रू होते हुए हम आते हैं, तो विच इज द ओनली वे टू रीच टू द सिटी सेंटर. हुयान है, हुयान लगभग 45 मिनट दूरी है, जिस तरीके से दिल्ली गुड़गांव है 40-45 मिनट, 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस, सिमिलरली हुयान है. हुए इज अराउंड 2 आवर्स अवे फ्रॉम दनांग. तो हुए का हम डे टूर कराते हैं. हुयान में लालटेन बोट राइड होती है, वो हम इवनिंग टूर कराते हैं. दनांग में मार्बल माउंटेन है, बाना हिल्स है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट साउथ, तो साउथ में हो ची मिन्ह है और फू क्वोक है.
Ho Chi Minh has a very good nightlife to offer. Clubs हैं, walking street हैं, massage parlors हैं. So if you are a bachelor and you want to enjoy it, then you can go to Ho Chi Minh, and there is a very good beer culture in the Ho Chi Minh. You can मतलब walk around and drink beer everywhere in the Vietnam. This is the map of north of Vietnam. It has Hanoi, Halong and Sapa. You can see, right? हनोई में क्या है, हनोई में बेसिकली सबसे पहले हम हनोई का सिटी टूर कराते हैं. तो हम आइटनरी के हिसाब से बात करेंगे. तो डे 1 पे अराइवल हुआ. मेजरली व्हाट हैपेंस इज, ज्यादातर जो इंडिया से फ्लाइट्स हैं वो सुबह सुबह का या मिडनाइट का अराइवल है, राइट. तो मिडनाइट का अराइवल होता है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस कि आप अपने क्लाइंट के लिए अर्ली चेक इन बुक करें, राइट. और जो सुबह सुबह का 5 बजे 6 बजे के अराउंड का अराइवल है, उस पर्टिकुलर केस में हम सबसे पहले अराइवल के बाद गेस्ट अपना लगेज होटल में ड्रॉप करेगा, और उसके बाद टूर गाइड और ड्राइवर आएगा, उनको पिक करेगा और सिटी टूर कराएगा जिस भी सिटी में उनका अराइवल है. सो इफ वी टॉक अबाउट हनोई, तो सबसे पहले हनोई का सिटी टूर होगा. इन दैट सिटी टूर आपको ओल्ड क्वार्टर्स विजिट कराएंगे, नॉक सॉन टेम्पल आपको विजिट कराएंगे, हो ची मिन म्यूजियम है. सो हो ची मिन म्यूजियम इज इन हनोई, नॉट इन हो ची मिन, राइट. तो दीज आर द की पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर, राइट. होआन किम लेक विजिट कराते हैं. यहाँ पर नीचे आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, दैट इज ऑफ होआन किम लेक ओनली. टेम्पल ऑफ लिटरेचर आपको विजिट कराते हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस विजिट कराते हैं. And there is a one fun activity which can be included in Hanoi City Tour, that is water puppet show. तो water puppet show, water puppet theater है हनोई ओल्ड क्वार्टर्स के पास, बिल्कुल सिटी सेंटर में, जहाँ से आपका होटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, राइट. तो वाटर पपेट थिएटर में वाटर पपेट शो विजिट करते हैं. इट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर कपल्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट. Next is Halong. So Halong Bay province, it is around 3 hours far from Hanoi. तो पहले दिन आपने हनोई सिटी टूर किया, शाम को वाटर पपेट शो किया, इंडियन रेस्टोरेंट हमने आपको सजेस्ट कर दिए, वहां पर आपके गेस्ट ने डाइन इन कर लिया. नेक्स्ट डे सुबह सुबह अराउंड 8 o'clock आपका वापस पिकअप होगा हलोंग बे जाने के लिए. अगर आपने डे क्रूज लिया है तो इन दैट केस आपका सुबह 8 o'clock के अराउंड पिकअप होगा, लगभग 12 o'clock आपकी क्रूजिंग स्टार्ट होगी, अराउंड 4 to 5 hours की आपकी क्रूजिंग होगी, और सिटिंग चेयर्स होंगी डे क्रूज में बेसिकली. और उसके बाद आप अराउंड 5 o'clock और 6 o'clock आप वापस हार्बर पे होंगे, और हार्बर से आपको वापस पिक करेगी हमारी गाड़ी, और आपको विद इन द स्पैन ऑफ 3 hours आपको वापस आपके होटल ड्रॉप कर देगी, राइट. तो ये डे क्रूज हो गया. अगर किसी को ओवरनाइट क्रूज लेना है 1 night और 2 day का, राइट. सो फॉर 1 night 2 day क्रूज व्हाट हैपन, सुबह को 8 बजे सिमिलर तरीके से पिकअप होगा. इन 3 hours यू विल बी देयर एट हार्बर, एंड अराउंड 12 o'clock आपका चेक इन होगा क्रूज में. आफ्टर चेक इन यहाँ पर नीचे मैप बना हुआ है, इफ यू कैन सी ऑफ द मैप ऑफ हलोंग बे. तो आप तुआन चाओ आइलैंड इज अ हार्बर, तो आप हार्बर से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हलोंग बे में क्रूजिंग करते हुए बीच में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हॉल्ट होगा, वहां पर आप कयाकिंग कर सकते हैं. यू विल विजिट डार्क एंड ब्राइट केव्स, एंड यू कैन डू मेनी फन एक्टिविटीज ऑन क्रूज ऑल्सो. वहां पर जुम्बा होता है, योगा होता है. उसके साथ साथ बीच में आइलैंड पे छोटे छोटे 3 बीचेस हैं मेजरली, टिप टॉप बीचेस. तो टिप टॉप बीच पे वो आपको होल्ड करेंगे, वहां पर आप यू कैन विजिट द बीच एंड यू कैन हैव फन ओवर देयर. क्रूज में ही आपका शाम को डिनर होगा. In the night you will sleep in the cruise cabin. You will get a cabin for 2 packs on double sharing basis, or it is very good activity for couples and family, right. तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह को आपके वापस क्रूज हलोंग बे के बिल्कुल सेंटर से आपको लेकर वापस हार्बर की तरफ जाएगी. कुछ एक्टिविटीज होगी, ब्रंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, और उसके बाद आपको हार्बर पे ड्रॉप कर देंगे, राइट. उसके बाद वापस हमारी गाड़ी पिक करेगी, एंड वी विल टेक यू बैक टू हनोई इन नेक्स्ट 3 hours. और हनोई पहुंचने के बाद इट विल बी अ लेजर डे, बिकॉज इट विल बी ऑलरेडी अराउंड 4 o'clock, और फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, तो ऑब्वियसली द गेस्ट विल गो फॉर लंच एंड the rest of the day will be at leisure. So if you guys are planning के हलोंग बे जिस दिन हुआ उस दिन के बाद उनकी डोमेस्टिक फ्लाइट हो, तो I'll tell you, हनोई मतलब हनोई से दनांग जाना हो आपको या हो ची मिन जाना हो, every domestic transfer in Vietnam will ask for the flight, right. आपको बाय एयर ही ट्रेवल करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर स्लीपिंग ट्रेन हैं, स्लीपिंग बसेस हैं, मतलब ओवरनाइट ट्रेन एंड बस जर्नीज हैं, लेकिन वो इतना कॉस्ट सेविंग नहीं करते और बहुत हेक्टिक बना देते हैं टूर को फॉर द गेस्ट, राइट. सो बहुत कम डिफरेंस आता है अगर आप बस की टिकट लो या फ्लाइट की टिकट्स लो, अराउंड 1000 to 2000 रुपीज का डिफरेंस आता है. तो आई थिंक दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न.
तो हलोंग के बाद हम बात करते हैं निनबिन की। तो सेकेंड डे हलोंग हो गया, थर्ड डे वो निनबिन गए, सुबह सुबह अराउंड 8 o'clock 8:30 पिकअप होगा। निनबिन में विचलोंग पगोड़ा विजिट करा, हुआलू एंशिएंट कैपिटल विजिट करी, टैंकॉक विजिट करा, एंड त्रांगान में बोट राइड होती है बेसिकली। सो बोट राइड इज ऑल्सो वेरी की अट्रैक्शन फॉर निनबिन। तो बोट राइड करते हैं, और बोट राइड करने के बाद बाय अराउंड 5 o'clock यू विल बी हेडिंग बैक टू हनोई, राइट। 2 hours का ट्रांसफर है हनोई से निनबिन, निनबिन से हनोई वापस। Sapa is around 7 hours away from Hanoi, so we always suggest for one night stay in Sapa. So what happens for the Sapa trip is कि आप हनोई से सुबह सुबह या फिर शाम को आपका पिकअप होगा। If you want a overnight journey, in that case रात में, otherwise सुबह सुबह आपका पिकअप होगा। You will reach Sapa in the afternoon, आपका होटल में चेक इन होगा। पूरा दिन जो होगा that will be at leisure, आपको आसपास खुद विजिट करना है, you can explore। नेक्स्ट डे हम आपको सिल्वर वाटरफॉल प्लस आपको फांसी पान इज एन अम्यूजमेंट पार्क, फांसी पान इज अ हिल, राइट। तो फांसी पान पीक पे विजिट कराएंगे। ये 2 एक्टिविटीज मेजर आपको सापा में कराएंगे। सो आवर कार एंड ड्राइवर एंड टूर गाइड विल पिक यू अप। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, हम हर पर्टिकुलर टूर में आपको इंग्लिश स्पीकिंग टूर गाइड देंगे, सो दैट लैंग्वेज बैरियर का आपको कोई इशू ना हो, राइट। सो द कार ड्राइवर एंड टूर गाइड विल पिक you up and take you to first to the silver waterfall, then they will take you to the Fansipan mountain, and वहां पर आपको केबल कार से you will go to the peak of the mountain, and you will see the Sapa Heaven Gate, and it is a very beautiful natural scenario, and I've seen it, and it is once in a lifetime thing to do. So next is center of Vietnam. In center of Vietnam, as I already told you, Da Nang है, Hue An है, and Hue है, right. So Da Nang में अगर मैं आइटनरी के हिसाब से हम बात करते हैं, तो आपके क्लाइंट ने हनोई का सारा टूर ओवर करने के बाद ही विल कम बैक टू द हनोई एयरपोर्ट। हमारी गाड़ी वहां पर ड्रॉप करेगी हनोई एयरपोर्ट पे, फ्लाइट कैच करेंगे, और उसके बाद दनांग जाना है सपोज, तो दनांग की फ्लाइट कैच करके दे विल लैंड एट दनांग। वहां से वापस हमारी गाड़ी पिक करेगी। तो सारे एयरपोर्ट ट्रांसफर्स हमारे सारे पैकेजेस में इंक्लूडेड होते हैं, राइट, बीट डोमेस्टिक ट्रांसफर और इंटरनेशनल ट्रांसफर। फिर दनांग से हमारी गाड़ी उनको पिक करके होटल ड्रॉप करेगी। उसके बाद हम उनको फर्स्ट डे, अगर सुबह सुबह फ्लाइट लैंड कर रही है इन फर्स्ट हाफ, तो हम दनांग का सिटी टूर प्लस होयान का सिटी टूर दे सकते हैं। अगर इन द आफ्टरनून आप दनांग पहुंच रहे हैं, तो इन दैट केस हम होयान का सिटी टूर देते हैं इवनिंग का। तो होयान का सिटी टूर में आप सभी लोगों ने फोटोज देखी होंगी लालटेन बोट राइड की। तो मेजर अट्रैक्शन इज लालटेन बोट राइड इन होयान सिटी टूर, एंड इन दनांग सिटी टूर द मेजर अट्रैक्शन इज मार्बल माउंटेन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे व्हाट the guests can do is they can go to Bana Hills and Golden Hand Bridge. You can see the photo, जो सबसे पहली वाली पिक्चर है, that is of Bana Hills Golden Hand Bridge. So यहाँ पर भी केबल कार से आप जाएंगे, तो आपके गेस्ट को हम बाना हिल्स पहुंचाएंगे, वहां से वो केबल कार लेंगे और वो गोल्डन हैंड्स ब्रिज तक जाएंगे। फिर दे विल स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, दे विल क्लिक द फोटोज, make some reels and videos whatever, and then they will be heading back to the Bana Hills via cable car only, right. So return transfer होते हैं केबल कार के। Bana Hills में there is a theme park also, so if the guests want to visit that, we can include it in tickets. Otherwise what we prefer is there are multiple games and activities to do, तो guests खुद से भी वो कर सकते हैं, the tour guide will help them to do so. उसके अलावा दनांग सिटी टूर में ही ये विजिट होता है। दनांग कैथेड्रल है, सोनत्रा नाइट मार्केट में अगर किसी को शॉपिंग करना है, गेस्ट आपसे पूछता है यार कोई नाइट मार्केट है या कहीं शाम को जा सकते हैं, तो दे कैन गो टू सोनत्रा नाइट मार्केट, एंड देयर आर मल्टीपल बार्स एंड क्लब्स नियर सोनत्रा नाइट मार्केट। ड्रैगन ब्रिज, ड्रैगन ब्रिज आप लोगों ने मतलब यू कैन सी द लास्ट फोटो, इट इज ऑफ ड्रैगन ब्रिज ओनली। तो ड्रैगन ब्रिज वीकेंड्स पे शाम को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। देयर इज फायर एंड लाइट शो, राइट। तो वो काफी ब्यूटीफुल होता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगती है इन द वीकेंड। सो आई विल सजेस्ट, अगर आप गेस्ट की आइटनरी बना रहे हो तो हम उसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं कि दनांग में जो उनका स्टे हो उसमें कोई ना कोई वीकेंड डे आए, सो दैट हम उनको ड्रैगन ब्रिज को भी विजिट करा सके, राइट। सो नेक्स्ट इज होयान। होयान आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर लालटेन बोट राइड होती है। होयान से अराउंड 20 मिनट्स अवे देयर इज कोकोनट फॉरेस्ट, वहां पर बास्केट बोट राइड होती है, जिस तरीके से इंडिया के भी काफी पार्ट्स में बास्केट बोट राइड होती है, सिमिलर काइंड ऑफ बोट राइड है, बट इट इज अ वेरी फन एक्टिविटी इफ यू हैव किड्स विद यू।
राइट। तो कुछ पैकेजेस मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, तो देयर शुड बी सम एक्टिविटीज जो किड्स के लिए भी काफी एंटरटेनिंग हो। तो बाना हिल बास्केट बोट राइड एंड लालटेन बोट राइड आर वन ऑफ दोज एक्टिविटीज। Hue is the imperial city. You will find wonderful castles over there, monuments and many things, right? So Hue का हम day tour देते हैं. It takes around 3 hours to reach Hue. So the pickup will be in the morning. You'll go to Hue, you will visit the city and you will have a city tour, and the evening you will be back to Da Nang, right? सो दनांग में सिमिलर होगा। दनांग में आपको चेकआउट वाले डे आपका होटल से चेकआउट हो जाएगा, होटल लॉबी में आपका लगेज हो जाएगा। फिर जब आपका फ्लाइट टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर एंड बेसिकली फॉर एयरपोर्ट ट्रांसफर ड्राइवर एंड कार विल बी देयर टू पिक यू अप एंड देन दे विल ड्रॉप यू एट दनांग एयरपोर्ट। देन अगेन दनांग से आप फ्लाइट लेंगे टू होचिमिन एंड विल गो टू होचिमिन। सो होचिमिन में नाइट लाइफ फेमस है। So the major point of attraction in Ho Chi Minh are basically there are two sightseeings majorly. One is of Kuchi Tunnel and another is of Mekong Delta. What is Kuchi Tunnel? Kuchi Tunnel is a area जहाँ पर around 250 kilometers के area में उन्होंने tunnels बना रखी हैं of different shape and size, varying from around 7 to 8 meters to up to 100 meters, right? And this was the defense system for Vietnamese army during their war with the US. So the difference is जो US है या फिर हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो we call it Vietnamese war, right? But the Vietnamese people they call it civil war, right? तो वो उसको civil war कहते हैं and वो उन्होंने डिफेंस सिस्टम बना रखा था यूएस की पूरी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए। इन कुची टनल द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई जब भी मैं वहां पर गया इज अ शूटिंग रेंज। तो शूटिंग रेंज टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं होती है बिकॉज वहां पर आकर जाकर आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सी पर्टिकुलर गन ट्राई करनी है। तो मैं गया था, मैंने AK-47 M16 एंड मशीन गन भी ट्राई करी थी, राइट? सो लाइट मशीन गन्स होती है वहां पर। तो यू कैन गो एंड यू कैन परचेज दी कार्ट्रिजेस of 5 cartridges of each gun you will have to purchase, and you will have to decide how many guns and what you have to try. So it will be a wonderful experience. And if we talk about Mekong Delta, so Mekong Delta is just a tour around the Mekong River. Mekong River को वो लोग बहुत मानते हैं, सिमिलरली हम जैसे गंगा को मानते हैं तो मेकोंग को भी ये लोग बहुत मानते हैं। रीजन बीइंग कि मेकोंग रिवर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इरिगेशन नियर बाय द हो ची मिन सिटी एरिया। वहाँ पर राइस फील्ड्स काफी अच्छी होती हैं और इसको मेकोंग डेल्टा के आसपास की जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको राइस बॉल ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिटी टूर। तो इन सिटी टूर ऑफ हनोई सॉरी हो ची मिन आप लोग क्या विजिट करोगे? यू विल विजिट द म्यूजियम ऑफ हो ची मिन सिटी, you will visit the presidential palace, you will visit reunification palace, and with that you will visit the walking street, right? So what is walking street in Ho Chi Minh? So walking street is the street जहाँ पर आपको मेजरली जितने भी आपको क्लब्स, नाइट बार्स और जो भी आपको नाइट लाइफ मिलेगी वो मेजरली यू विल गेट इन हो ची मिन ओनली। Japan town है हो ची मिन में, they call it Tokyo street also. So it is also a very happening place in the night. You can go and visit and have a glimpse of it, right? Bantha market is a local market जहाँ पे से आप shopping कर सकते हो। हाँ, you will find in Ho Chi Minh you will find various shopping complexes, malls and everything, and you'll get a very good price as compared to other cities of Vietnam, because as Ho Chi Minh they call it a business capital of Vietnam. So major business और major trading जो होती है वियतनाम में, it is in Ho Chi Minh only. फुकोक आइलैंड इज एन आइलैंड। मैंने बताया हम वापस क्या करेंगे, हो ची मिन से वापस हो ची मिन एयरपोर्ट जाएंगे, वो एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे और फिर हम फुकोक लैंड करेंगे। फुकोक से वापस हमारी गाड़ी और ड्राइवर आपको पिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको नॉर्थ फुकोक या सेंट्रल फुकोक या साउथ फुकोक जहाँ भी आपका होटल या रिजोर्ट होगा तो आपको वहां पर ड्रॉप करेंगे। इन फुकोक यू कैन हैव 4 आइलैंड टूर, यू कैन गो टू सफारी, यू कैन गो टू विंड वंडर theme park, you can go to Grand World theme park, Grand World amusement park for the evening tour,
and you can visit multiple beaches, you can do water activities, cable cars. Phuket has everything to offer. Plus अगर हम beaches की बात करें, so what I'll suggest you is कि Phuket में जाओ तो always go for the resort, not for the hotel, because in resort you will get an option of private beach and you can enjoy your evening in the beach. So thank you very much, and if you have any questions, so I'm ready to answer. Right. So thank you so much, Gaurav, for thank you so much, Gaurav, for explaining Vietnam destination so beautifully. And I hope our traveler. Just give me a second. I think my voice is echoing. Hi. So yeah, apologies for the trouble. So thank you so much, Gaurav, for explaining the Vietnam destination so beautifully. I hope our travel agents have got to know much more about this destination. And I request all our travel agents to just put their questions in the chat box. आपको जो भी question पूछना है गौरव से कि यहाँ पे खाना मिलता है कि नहीं, किस टाइप का खाना मिलता है, कौन सी क्रूज मिलती है, एंड ऑल दोस क्वेश्चंस. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए, मैं एक एक करके सारे अभी गौरव से पूछवाऊंगा. Right. And yeah, let's just start. Right. So again, the first question, let me just go back. I think there are a lot of questions. So the first question that everyone is asking is, like, most of the travel agents have asked, ki monsoon season and which is the peak season for going to Vietnam. So monsoon, मैंने presentation के starting में ही बोला था, तो monsoon is a concern of nowadays. So if I talk about monsoon in Vietnam, तो end of July से there will be a rainy season in Vietnam. लेकिन नॉर्थ सेंटर और साउथ में एक साथ रेनी मानसून नहीं आता है, which is a good point for all of us, right? So if we talk about the Danang, तो दनांग में मॉनसून पीरियड सितंबर के अराउंड शुरू होगा और अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक इट विल बी वेरी लाइट मॉनसून, राइट? सो काफी खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर मैं आपको हनोई की बात करूं तो इन हनोई मॉनसून विल बी स्टार्टिंग इन द लेट ऑफ जुलाई and it will be over by I think by the end of August or the early September, right? और अगर मैं होचिमिन की बात करूं तो होचिमिन में मॉनसून विल नॉट अफेक्ट मच, बिकॉज होचिमिन में देखो मॉनसून क्या इफेक्ट करेगा मेजरली, आई टेल यू. मॉनसून क्रूजिंग को इफेक्ट करेगा, बिकॉज कभी भी हाई टाइड्स होंगी और ज्यादा रेन होगी तो क्रूज में इफेक्ट पड़ेगा या बोट राइड पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट? जो सेंटर की बोट राइड्स हैं वो कभी भी कैंसिल नहीं होती हैं, लेकिन क्रूज है वो कभी कैंसिल हो सकता है, विच इज नॉट इन एनीबडीज हैंड, राइट? बट अगर कोई भी टूर कैंसिल होता है ड्यू टू मॉनसून, सो वी ऑलवेज प्रोवाइड द अल्टरनेटिव, और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग वी ऑलवेज ट्राई टू रीशेड्यूल इट, कि अगर सपोज मॉनसून की वजह से एक टूर नहीं हो सकता तो वी कैन गिव द अल्टरनेट टूर टू द गेस्ट, सो दैट वो बोर ना हो और उनको ऐसा ना लगे यार मैं तो बारिश के मौसम में आ गया और मेरा टाइम वेस्ट हो गया. बिकॉज आई नो लोग कितना मेहनत करके, आपको भी पता है देवांश, कितना मेहनत करके टाइम निकालते हैं और पैसा बचाते हैं कहीं भी ट्रिप करने के लिए. Right. So, yeah, I think that was answered very nicely that way. Right. So the next question is, which airport is majorly suggested? So majorly, if I talk about the direct flights, so हो ची मिन और हनोई में आपको अभी करंटली डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी. दनांग और फुकोक की भी थी अराउंड 6 मंथ अर्लियर, लेकिन अभी ड्यू टू लेस ट्रैफिक तो दनांग और फुकोक की बंद कर दी हैं. बट आपको हो ची मिन और हनोई से सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी, राइट? तो मेजर एयरपोर्ट्स आर हो ची मिन एंड हनोई. Right. So the next question is, कि do we offer cruise and कौन सी category के cruises हम देते हैं? So as I told you, we offer two type of cruise. One is day cruise and another is overnight cruise. Day cruise में normal कोई category नहीं होती. Day cruise में sitting chairs होती हैं and around 5 hours का cruising tour होता है, right? But if I talk about the overnight cruise, so it has two segments majorly, one night and two night cruise, right? So similar concept होता है दोनों cruises का. उसमें overnight stay होता है और एक private cabin मिलता है गेस्ट को. सारी मील्स इंक्लूडेड होती हैं
And major categories what we provide is we cater in 4-star and 5-star categories in Halong Bay cruises, because 3-star cruises are the old ones जो wooden boats हैं, और अभी steel boats का जमाना आ चुका है, तो we prefer steel boats of 4-star and 5-star category. Right. So the next question is, what is the average fare between Hanoi and Da Nang and Da Nang and Da Nang and I think this is SGNS Ho Chi Minh's airport. सो एवरेज एयर फेयर की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक का आपको 5 to 6,000 पर पैक्स पड़ेगा, और आपको इंटरनेशनल का 30,000 के अंडर अंडर में रिटर्न फ्लाइट्स मिल जाएंगी। आई थिंक 25 के अराउंड भी मिल जाएंगी इफ यू बुक प्रायर टू 1 month और 2 months, राइट, अगर प्लान ऑलरेडी है। राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम 2 पैक्स भी बेच रहे हैं तो क्या आप तब भी गाइड प्रोवाइड करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली देखो 2 पैक्स जा रहे हैं, और इवन सिंगल पैक्स का भी ट्रिप है आपका, अगर आपका कोई बिजनेस ट्रिप है कि कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, उनकी कोई मीटिंग है, उसके लिए वो जा रहे हैं और उनको ट्रांसलेटर चाहिए, तो हम ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड कराएंगे। और उनको बिजनेस ट्रिप के साथ साथ अगर बाकी ट्रैवल भी करना है, टूर्स का भी लुत्फ उठाना है, तो वो चीज भी हम करा देते हैं। बिजनेस ट्रिप और नॉर्मल टूरिस्ट ट्रिप दोनों चीज हम कंबाइन करके भी दे सकते हैं। एंड गाइड देना आपको भी पता है इसलिए नेसेसरी है बिकॉज अगर गेस्ट के पास कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कॉमन लैंग्वेज आती हो, तो इन दैट केस इट विल बी अ वेरी टफ जॉब फॉर मी एंड यू ऑल्सो टू मतलब फ्रॉम द पैकेज, राइट, तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। Right. So the next question is like, I think we've got this question from a lot of travel agents कि एक स्टैंडर्ड आइटनरी बता दो वियतनाम के लिए एंड 2 पैक्स का कितना कॉस्ट पड़ेगा एवरेज वाला। सो अभी गौरव एक आपको स्टैंडर्ड आइटनरी बता देंगे। ऑल्सो थोड़ी टाइम बाद गौरव आपको ये भी बताएंगे कि हम अगले 10-15 दिन में आपको बेसिकली क्या क्या फ्रीबीज दे रहे हैं या बेसिकली क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दे रहे हैं, राइट। तो ताकि अपने क्लाइंट्स का एक बार ऑफर करेंगे तो कम से कम ये होगा कि लाइक they'll feel special कि आपने उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, राइट। सो गौरव प्लीज एक स्टैंडर्ड आइटनरी बता दीजिए एंड एवरेज है। सो देवांश, स्टैंडर्ड आइटनरी जो है, स्टैंडर्ड आइटनरी मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो 5 नाइट की आइटनरी प्रेफर करता हूँ, जिसमें आप 2 नाइट्स हनोई रहें, जहाँ पर आप पहले दिन सिटी टूर करें, सेकेंड डे आप नैनबिन का टूर करें, फिर 1 नाइट आप हलोंग बे का क्रूज करें, राइट, और फिर हलोंग बे से वापस आकर आप दनांग की फ्लाइट पकड़ें, दनांग पहुंचे, और दनांग जाकर आप फर्स्ट डे सिटी टूर प्लस दनांग का सिटी टूर प्लस हुयान का सिटी टूर करें विद लालटेन बोट राइड एंड बास्केट बोट राइड। सेकेंड डे आप बाना हिल्स और गोल्डन ब्रिज करें, और फिर आप जो आपका मेजरली 6th डे जो होगा, मेनली जो आपका डिपार्चर डे होगा, वो एट लेजर होगा, उसमें गेस्ट शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो ये 5 नाइट की आइटनरी रहती है। प्लस अगर किसी को नाइट लाइफ एंजॉय करनी है साथ में विद द नेचुरल ब्यूटी, तो इन दैट केस हम उनको 3 नाइट्स मतलब 2 नाइट्स हनोई, 1 नाइट हलोंग बे, 3 नाइट्स इन नॉर्थ देंगे, प्लस उनको 2 नाइट्स साउदर्न पार्ट में देंगे, हो ची मिन में, इंस्टेड ऑफ सेंट्रल पार्ट। तो 5 नाइट्स आइटनरी इज द मेजरली मोस्ट कॉमन आइटनरी। लोग 4 नाइट्स का भी करते हैं, उसमें ओवरनाइट क्रूज को हटाकर हम डे क्रूज डाल देते हैं, तो वो थोड़ा बजट में आ जाता है। ओवरनाइट क्रूज के साथ द कॉस्ट विल बी अराउंड 450 USD पर पैक्स, और अगर हम डे क्रूज कर देंगे उसको, तो वो 4 नाइट का कॉस्ट विल बी अराउंड 300 समथिंग USD per pax it is, right? So also if I talk about the freebies and inclusions, so for all your information, हम अभी कल से लेकर from the 1st of July to 15th of July we are running a promotions for Vietnam, राइट, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा हम वियतनाम के बारे में बताना चाहेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि एक ट्रैवल एजेंट को एक नई डेस्टिनेशन अगर मार्केट में आ रही है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आपके गेस्ट को भी आपके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, राइट। तो हम वियतनाम के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा डील्स देंगे। कुछ हम कॉम्प्लीमेंट्री इंडियन मील्स, इंडियन डिनर्स दे रहे हैं। और फूड का ये जो लोगों को लगता है ना, ये सब मिसकंसेप्शन है। मैं आपको वहाँ छोला भटूरा खिलाऊंगा, मैं आपको समोसा खिलाऊंगा, टिक्की खिलाऊंगा, गोलगप्पे खिलाऊंगा मैं वियतनाम में। दे हैव एवरीथिंग। इंडियंस हर जगह है, उन्होंने हर जगह रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, but just it is like कि we have to go to the right person to get the right thing, ठीक। उसके अलावा जो बोट राइड्स हैं, कुछ बोट राइड्स हम फ्रीबीज में ऐड कर रहे हैं विद द सिटी टूर,
जो वाटर पपेट शो है विद हनोई सिटी टूर हम ऐड कर रहे हैं, जो आपके गेस्ट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. सो वी आर एडिंग सम पॉइंट्स इन द आइटनरी एंड सम फ्रीबीज इन द आइटनरी, जो आपको आपके गेस्ट को और ज्यादा डिलाइट फील कराएं. सेकेंडरी, अगर एनिवर्सरी या हनीमून ट्रिप है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम फ्री बेड डेकोरेशन प्रोवाइड कराते हैं. अगर आपके गेस्ट क्रूज लेंगे तो हम एक नाइट क्रूज में और एक नाइट होटल में डेकोरेशन कराएंगे. इफ दे डोंट टेक ओवरनाइट क्रूज तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम होटल में बेड डेकोरेशन कराएंगे. तो वी कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू आस्क फॉर. आपको चाहिए कि एनिवर्सरी केक डिलीवर कराना है, वी कैन डू दैट. आपको चाहिए कि उनको किसी म्यूजिकल शो विजिट कराना है ऑन द एनिवर्सरी डे, तो वी कैन मेक दैट डे स्पेशल फॉर देम. नो वरीज. Right. Thank you so much, Gaurav. Coming on to the next question, what? एक second now. What to see in Monkey Mountains in Danang? So I'll tell you, Monkey Mountain is basically a mountain जहाँ पर बहुत सारे monkeys रहते हैं. तो जो यहाँ के इंडियन monkeys होते हैं, तो you will find a difference in skin tone and everything. वो थोड़े reddish होते हैं, right? बट कुछ ऐसा स्केरी चीज नहीं है, मतलब कोई आपको परेशान नहीं करता. पीपल गो एंड फीड द मंकीज ओवर देयर. और जो आपको मंकी माउंटेन विजिट करने के बाद, जो ऊपर माउंटेन पे पहुंचने के बाद जो नेचुरल ब्यूटी होती है और पूरा आपको दनांग सिटी दिखता है, तो दैट गिव्स अ फील, राइट. अदर देन दैट इन मंकी माउंटेन देयर इज नॉट सो मच टू डू, बट हम सिटी टूर में विजिट कराते हैं बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. Right. So the next question is, our travel agents want to know about the visa, कि visa on arrival होता है कि नहीं, और उसमें cost कितनी पड़ती है? देखो, वीजा ऑन अराइवल का एज सच इंडियंस के लिए अभी कोई कंसेप्ट नहीं आया है, बट द वियतनामीज गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट दिस. जो मेरे पास अभी न्यूज है सोर्सेज से, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months सो देयर विल बी ऑप्शन ऑफ वीजा ऑन अराइवल ऑल्सो. बट मैं आपको बता देता हूँ वीजा कॉस्टिंग का, कि नॉर्मल अगर आप ई वीजा अप्लाई करोगे तो इट टेक्स अराउंड 4 to 5 वर्किंग डेज टू गेट द वीजा एंड इट विल कॉस्ट यू 2500 INR, राइट, फ्रॉम ट्रैवल. बट अगर हम एक्सप्रेस वीजा की बात करें या फिर अर्जेंसी की बात करें, जिसके लिए हम ऑन अराइवल वीजा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका वीजा ऑन अ सेम डे आपको अप्रूव करा कर दे सकता हूँ. सो इफ यूल मतलब बुक इट विद क्राफ्ट प्लान, तो आपको एक्सप्रेस वीजा अगर हम सुबह को अप्लाई करेंगे तो यूल गेट इट बाय 4 PM इन द इवनिंग, राइट. सेम डे आपको वीजा मिल जाएगा. वी हैव कनेक्ट्स इन द एम्बेसी, बट द एक्सप्रेस वीजा इज ऑलवेज एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वीजा एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 110 USD per pax, right. बट द नॉर्मल वीजा इज ऑलवेज अ चीपर ऑप्शन एंड वी, आई थिंक हमारे पास हमेशा पैकेज बुक करते समय 1 हफ्ता 10 दिन का हमेशा बफर होता है, राइट. और अगर नहीं होता है इन दैट पर्टिकुलर केस, इन इमरजेंसी सिचुएशन और इन अर्जेंट केसेस, वी कैन डू एक्सप्रेस वीजा इफ द क्लाइंट इज रेडी टू पे. Right. So I think we're gonna take another 2 or 3 questions, क्योंकि बाकी questions के लिए I think हम गौरव को सीधा call या फिर एक mail कर सकते हैं. Right. मैं उसका mail ID I'll drop in the chat box. So the next question is, what about nightlife in Hoi An? Is it good? So in Hoi An, if you talk about actual nightlife, so there is not so much nightlife, but around 12 o'clock in the midnight or 1 AM in the midnight, वहां पर हुयान में आपको अच्छी खासी चहल पहल दिखेगी. वहां पे बोट राइड्स आपको दिखेंगी. और शाम को क्या होता है, हुयान में लालटेन्स जल जाते हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो लोग पूरा डेकोरेट करके रखते हैं हुयान. आप कभी भी हुयान में जाओ, यू विल फाइंड इट ऑलवेज डेकोरेटेड, राइट. तो वहां पर कैफेज हैं, बार्स हैं, मतलब वही जो हुयान हान रिवर है उसी के पास, राइट. But if you talk about the clubs and other things, there are multiple clubs, right. But अगर आप स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई मतलब explain to you कि you can find these type of services everywhere in the Vietnam, in any of the city, right. So there is a sufficient nightlife in every city, but the best one is of Ho Chi Minh City. Right.
सो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरीज में अगर मैं आपको होटल बताऊं तो एज यू नो देखो सभी सिटीज के मैं बताऊंगा तो अभी 50 होटल्स की लिस्ट हो जाएगी राइट, बट मेजरली इफ आई गिव यू द नेम्स अबाउट के हनोई में कौन से 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज हम देते हैं। तो इन हनोई वी हैव गोल्डन हॉलीडे 3 स्टार प्रॉपर्टी, ला डोल्से वीटा विद अस 3 स्टार प्रॉपर्टी, we have in 4 stars we have Q Hotel, we have Grand Vista with us. In 5 star we have Hanoi Vacanza, we have Dolce by Wyndham, राइट। डोल्से बाय विंदम के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो डोल्से बाय विंदम इज अ प्रॉपर्टी जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है एंड एक्चुअल में है। आप लोग अगर गूगल करोगे तो यू विल गेट द ऑथेंटिसिटी एंड ऑल्सो मेरे गेस्ट ने विजिट करा है तो इट इज अ होटल टू स्टे, इट इज अ प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू स्टे राइट। तो वो है। इफ आई टॉक अबाउट होचिमिन तो इन होचिमिन वी हैव in 3 stars we have Sunrise Central, we have Cherry Hotel, we have Sunflower, Sunrise Central, Cherry Hotel, and we have many more hotels right. EMM Hotel is there right. So if I talk about 4 star properties, then 4 stars I have Ramada Encore right, I have Paragon Saigon, I have Cecilia Saigon. In 5 star we have Pullman with us, we have Radisson with us, we have Novotel with us, we have Muang Than, that is a local 5 star hotel with us. In Danang, in 3 star hotel, I prefer all the hotels in the on the beach side, right? जिनसे होटल के balcony से या window से आपको beach दिखे, right? तो Danang में we have hotels like that. 3 star hotels भी हैं and the cost is very less. So अगर दानांग में आप 3 स्टार 4 स्टार होटल्स लेते हैं तो आपको बीच साइड होटल्स में मिलेंगे और बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा। इन 4 स्टार वी हैव सिसिलिया, वी हैव बालकोना होटल इन दानांग, वी हैव कैनवस होटल इन दानांग। इन 5 स्टार वी have again Radisson in Danang, we have Nesta, so there are n number of hotels अगर मैं बताता जाऊंगा तो Right. So last questions I think we can take क्योंकि मैं अगर अभी questions देखने लग गया तो I think बहुत सारे questions आ रहे हैं। उसके लिए मैंने गौरव की मेल आईडी स्पेशली चैट बॉक्स में डाल दी है। मैं अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस और लेता हूँ राइट। एंड सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्या डे क्रूज और नाइट क्रूज की वेसल सेम रहती है और क्या क्रूज पे जैन और वेज फूड मिलता है? ship. So if we talk about day cruise and night cruise, so ship different होती है because in day cruise sitting chairs होते हैं right, और वो normal boat होती है basic, और जो overnight cruise होती है it has cabins in it and it has majorly 2 floors और 3 floors होते हैं right। जो डे क्रूज होती है उसमें सन डेक होता है आपके अपर फ्लोर पे राइट, बट केबिन्स नहीं होते। और the second question was about the food in cruise. So we have day cruise and overnight cruises with us who provide Indian food, right? So we have Omkara cruise, which is a day cruise. तो वहाँ पर आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। वी हैव पैराडाइज एलिगेंस विद अस, वी हैव ला कास्टा विद अस, जहाँ पर आपको ओवरनाइट क्रूज में इंडियन फूड मिल जाएगा, जैन फूड भी मिल जाएगा। जैन फूड विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट फॉर द क्रूज आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप जब भी क्रूज बुक करें confirm the meal type first before booking the cruise, because cruise की booking भी थोड़ी complicated होती है because it is a international seaport, right? तो सिर्फ यही, otherwise be it Jain food, veg food, non-veg food, we can provide any variety, right? राइट। सो गौरव लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे दैट वी हैव इज कि हम बाकी डेस्टिनेशंस वियतनाम के साथ कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं, जैसे सिंगापुर या बाली? हाँ तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप देखो वियतनाम प्लस कंबोडिया के मेरे बहुत पैकेजेस जाते हैं, वियतनाम प्लस थाईलैंड, वियतनाम प्लस इंडोनेशिया मींस बाली के भी मेरे बहुत पैकेजेस चलते हैं राइट। तो आप लाइक अगर क्लाइंट के पास 8 नाइट्स का है ट्रैवल का टाइम तो 5 नाइट्स वियतनाम, 3 नाइट्स थाईलैंड या बाली या कंबोडिया वो कर सकते हैं तो इजीली, और हम कंबाइन करके पैकेजेस आपको दे देंगे। मतलब आई फ्रॉम वियतनाम टीम कैन डू दैट, समवन फ्रॉम थाईलैंड टीम कैन डू दैट, वी कैन कंबाइन द पैकेज एंड प्रोवाइड यू द voucher, so it is not a big deal. Right. So I think we can end the session here. यहाँ पे I can still see a lot of questions that went unanswered. हमने like सबसे relevant questions जो इस session से related था, we have like asked the questions from Gaurav, and if you have any more additional queries that you need to ask Gaurav, मैंने mail ID उनकी I think chat box में डाल दिया है।
it's again gaurav.verma@craftplan.com. And like हम लोग एक और सेशन जल्दी होस्ट करेंगे रिगार्डिंग वियतनाम सिटी बिकॉज रिगार्डिंग वियतनाम कंट्री बिकॉज अगेन जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत ही अपकमिंग डेस्टिनेशन है, इसका सीजन भी बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. एंड सून वी विल बी रिलीजिंग द लैंड फिक्स्ड डिपार्चर्स एज वेल फॉर वियतनाम, जो आप अपने क्लाइंट्स को ऑब्वियसली पिच कर सकते हैं, right? So again, thank you so much everyone for joining in. Gaurav, thank you so much for taking out time to explain everyone like Vietnam, how good of a country that is, right? And any closing remarks? So thank you, Devansh, and thank you everybody for joining, right? For giving me a chance to explain a bit about Vietnam to everybody, right? And one more question I just saw, जो मुझे थोड़ा relevant लगा और जो काफी practical problem बोली कि if a domestic flight gets delayed, तो उस particular case में cruise trip पे effect होगा या नहीं होगा? So I'll tell you one thing कि हम जो क्रूज की ट्रिप रखते हैं उस केस में फ्लाइट का किसी भी तरह का स्पेकुलेशन नहीं लेकर चलते. तो मेजरली अगर डोमेस्टिक फ्लाइट से आ रहे हैं और उसके बाद क्रूज करनी है तो मैं आपको हनोई में एक नाइट का स्टे दूंगा, नेक्स्ट डे क्रूज कराऊंगा. अदरवाइज इस तरीके से आइटिनरी बिल्टअप करूंगा कि क्रूज जो हो वो मिड ऑफ द विजिट आए और बाकी हम होटल्स का स्प्लिट स्टे दे सकते हैं. तो हम आइटिनरी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि कोई फ्लाइट मिस हो, मतलब मिस तो नहीं कह सकते, कोई फ्लाइट अगर डिले हो या अर्ली हो जाए तो इन बोथ ऑफ द केसेस कोई इश्यू ना हो. पोस्टपोन या प्रीपोन के केस में हम आइटनरी उसी प्लान हिसाब से प्लान करेंगे, राइट? सो फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स, सो थैंक यू एवरीबॉडी and please stay connected. Very soon we'll be giving you more and more information about Vietnam. You have my email ID, many of you already have my contact number, it is there on the holiday page of our portal also, so you can just send your questions to me on WhatsApp. You can just send me an email and I'll be more than happy to revert all of you. Right? Thank you. Right. So and for everyone's reference, मैं एक बार ट्रैवलन का जो basically holidays page है, which is वियतनाम का जो base holiday page है जहाँ से आप query ले सकते हैं, एटलीस्ट एक बार query लेके देखिए, see if you get any leads, right? And I'm just dropping the link. Just a second, huh? Yes, here you go. तो यहाँ पे इस पेज पे बेसिकली आपको दिख जाएगा कि जो भी आपकी पैकेजेस अवेलेबल है उसमें हम कस्टमाइजेशन भी करेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको पैकेज पेज पे दिख रहा है हम सिर्फ वही देंगे. आपको हर टाइप की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने के लिए, जैसा गौरव ने कहा, इट बी देयर फॉर यू. सो अगेन, जैसा अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट एन ऑफलाइन क्वेरी, अगर आपको सीधा ही ऑफलाइन क्वेरी बनवानी है तो आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, राइट? ये मैंने मेल में डाल दिया. So yeah, thank you everyone for joining in, and I hope it was an insightful session for everyone. And we'll connect with you soon. We'll connect with you with more content very soon. And I think Gaurav आएंगे, and Gaurav अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेके आएंगे जो basically उनकी contracting है, right? And so yeah, thank you so much. With this, we can end the session. And please hit the like button. Thank you so much for joining in, and we'll see you in the next one. Right? Thank you.